Hi everyone, welcome back to Edu Astro. And today again we are back with a bang with Nilesh G in the Enlightenment series. In the past three episodes, we have been providing you with some amazing insights on starting on the path of your self-actualization and enlightenment. Today we are again going to give you some great insights, and Nilesh G is again with us. Welcome, Nilesh Ji, and thank you again for joining in. Thank you, Kabirji, and thank you all the viewers. So let's talk without wasting any more time. So last episode we have just recap of it. So last episode we have discussed regarding the mind game. Yeah. We have also discussed regarding the word soul and the akash. And we have also discussed that if you want to understand the soul, Atma, so you have to understand the sky, Akash, because the Akash nature and the soul nature is very much like uh, uh, एक है पूरा वो. So almost the same. Yeah. Also, we have understand about the disassociation. So I have introduced one more practice about it. So if you want to understand the disassociation or witnessing part, so you just slow down your activity in a day, like one time, two time, as much as you can do. So whatever you can do, you can just slow down your activity. So in that slowing down process, you will get aware and you will experience the witnessing. You will understand the awareness. Now third thing we have uh, said about, I have mentioned about the quote, which is meditation is an effort to die. So I have explained everything on that what is If I meditation. remember, meditation is an effort to die voluntarily. Yes. So Correct. I have explained on that. So just see all three episodes. So what I did in all last three episodes, I just make the base to understand about the dhyan, about the disassociation, and about the awareness. And also, sir, last time you gave a very big mantra about silence. Yes, that is chup 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 sadhya. Sadhan. Yeah, that one. Yeah. So, but one thing you don't have to forget. Last episode I also said that we need physical body. Yes. To grow in our spiritual journey. Yeah. So without our physical body, the soul cannot work upon himself. Correct. Right? So now in this episode, we're gonna start and we're gonna understand the process, the soul, how the soul get progressed. उसका soul कैसे, मतलब how they travel, right? So आज हम लोग यहाँ ह्यूमन फॉर्म में है, लेकिन हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? Correct. Where we start. So आज हम थोड़ा उसको थोड़ा समझेंगे थोड़ा हम उसको. So let's start from the thing. See, this existence, the whole existence, right? उसका मूल कहाँ है? So in one Sanskrit word, it says nigodh. Nigodh, right? So उसको आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो. Nigodh is like a black hole. Okay. पूरा अंधेरा, it's utter अंधेरा.
darkness, pura darkness. You can understand in other word that word Nigod is a center point of our existence, right? So उसको मैं आपको उसको एक एनालॉजी से आपको जरा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपने कभी वो देखा होगा व्हील देखा होगा। व्हील Feel, घूमता है ना yes, गोल 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 गोल। चाहे चाहे वो कोई भी व्हील हो, गाड़ी का व्हील हो, इंजन का व्हील हो, इन जो मशीनरीज है उसके अंदर जो छोटे छोटे बॉल wheels, बेरिंग्स है उसका व्हील हो, बराबर वो घूमता है बराबर। लेकिन वो जब भी व्हील घूमता है उसके अंदर जो होता है चाक होता है, शाफ्ट होता है। वो that चाक जो होता है spokes, ना, हाँ, तो वो स्टिल होता है। correct, सो व्हील उसके ऊपर ही घूमता है ना पूरा, correct, उसके ऊपर ही घूमता है, राइट? सो अगर अगर वो व्हील के साथ वो भी घूमने लगे तो फिर हो गया। तो वो व्हील नहीं घूमेगा, फिर राइट, दिस ऑल सब यहाँ वहाँ सब हो जाएगा। करेक्ट, So exactly the word I said, nigodha. Nigod is a चाक। ये पूरा सेंटर यूनिवर्स है ना, उसके ऊपर घूम रहा है। वहाँ वो इस लाइक अ अननोन है वो। नो वो करेक्ट, निगोद बिल्कुल अननोन है। You can say in other word is a mystical power, you can say mystical power, कि जहाँ कुछ भी नहीं है, अटर डार्कनेस है। लेकिन वो ब्लैक होल में से जो एनर्जी का मैनिफेस्टेशन होता है, पूरा यूनिवर्स उससे सब घूम रहा है। करेक्ट, चांद, तारे, सितारे, प्लैनेट्स, नक्षत्र, सन, मून, एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड, या राइट? सो उस सो वो निगोद को समझने के लिए लेट्स से आई गिव यू वन मोर एनालॉजी। That energy, the life force, the black hole energy, right? That energy, that energy is so powerful and dark, right? उस एनर्जी का लेवल कैसे मैनिफेस्ट होता है? जैसे वो समझ लो कोई एनर्जी परमात्मा की एनर्जी है, हम्म, उसको आप समझ लो। भी वो वहां से वो ब्लैक होल में से एनर्जी एक बाहर निकली। राइट, वो एनर्जी बाहर निकल के वो लाइट हो गई, प्रकाश बन गई। हम्म, वो प्रकाश में से निकला साउंड, ध्वनि निकली, करेक्ट, राइट? उस साउंड में से निकले एलिमेंट्स, करेक्ट, राइट? उस एलिमेंट से सारा कुछ बना है, राइट, ऑल द फाइव राइट? एलिमेंट्स, राइट? 5 एलिमेंट्स है। वापस वापस वो वही एलिमेंट वही एलिमेंट जब भी ट्रांसफॉर्म होता है तो एलिमेंट ट्रांसफॉर्म होके साउंड हो जाती है, साउंड ट्रांसफॉर्म होके लाइट हो जाती है, और वही लाइट फिर ब्लैक होल में हमें हो वापस जाती है। चलेंगे, तो ये पूरा आपको ये हो गया, मेक सेंस, या राइट? सो अभी हम इस तरह से समझते हैं कि हमारी एज अ सोल हम लोग अभी ह्यूमन फॉर्म में यहाँ तो आ गए, लेकिन हमारा स्टार्ट पॉइंट है कहाँ पे, करेक्ट, राइट? तो वो स्टार्ट पॉइंट समझने के लिए मैं आपको और एक एनालॉजी दूंगा। लाइक एक एनालॉजी ऐसी है कि फिश है, फिश फिश पूरे दिन पानी में ही होती है, राइट, पानी में ही उसका बर्थ होता है, पानी में ही वो खेलती है, हँसती है, जो भी कुछ करती है पानी के अंदर ही, पानी के अंदर ही है उसका राइट, सब कुछ पूरा जीवन। लेकिन उसको पता नहीं है, वो सोचती रहती है कि वेयर इज माय लाइफ सोर्स एनर्जी। करेक्ट, मैं हूँ, मुझे पता नहीं कि पानी के अंदर ही है, लेकिन वो पानी जो है ना उसको वो फील नहीं कर पाती करेक्ट, कि बिकॉज इट इज उसकी नॉर्मल फॉर हर, राइट? तो उसको पता नहीं चलता कि मैं हूँ, मैं हूँ
कहाँ से हूँ मैं, कहाँ से करेक्ट। हूँ। तो वो पता करने के लिए उसको एक बार अलग होना पड़ेगा, पानी से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। द मोमेंट शी गोज आउट ऑफ द वाटर, उसको पता चला, अरे मेरा लाइफ सोर्स तो यहाँ है, इधर। जो मैं पानी में रह के ही ढूंढती थी कि वेयर इज माई लाइफ सोर्स, वेयर इज माई लाइफ सोर्स, वो तो पानी के अंदर ही है, करेक्ट। राइट। तो उसको वो जानने के लिए एक बार अलग तो होना पड़ेगा ना, या वो जानने के लिए। सो वैसे ही वैसे ही अपना है। हम लोग सुपर कॉन्शियसनेस जो रेज है, हम उसी के पार्ट है, लेकिन हमको हमको वो अननोन है हमारे लिए, वो वो चीज हमारे हमको पता नहीं है। तो करेक्ट। उस वो चीज जानने के लिए हमको एक बार अलग होना पड़े कि हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ है। करेक्ट। सो सो हम ये जो ह्यूमन फॉर्म में आए, अभी आप ऐसे, अभी आप उसको ऐसे अंडरस्टैंड करो, ब्लैक होल में से एक अनकॉन्शियस रेज बाहर निकली, हम्म। बराबर है? वो रेस बाहर निकलते निकलते वो पत्थरों से गुजरी, पहाड़ों से गुजरी, पेड़ पौधों से गुजरी, बर्ड्स एनिमल से गुजरी। तो ये जो गुजरना है ना, वो हमारे फॉर्म्स है। करेक्ट। हम यहाँ तक गुजरते गुजरते आए ना ह्यूमन फॉर्म में, या हमको पता ही नहीं हम कहाँ कहाँ से आए गुजर के। कभी हम करेक्ट। पत्थर थे पास्ट में, कभी हम पहाड़ रहे होंगे, कभी हम झाड़ रहे होंगे, कभी पौधे बने होंगे, कभी पक्षी बने होंगे, कभी एनिमल्स होंगे हम, या हमको नहीं पता। तो वो होते 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 हम लोग ह्यूमन में आ गए, या बराबर। तो वो जो ह्यूमन फॉर्म में हम हमारा जो आना हुआ, अभी भी हम अनकॉन्शियस है, हमको पता नहीं है कि हम कहाँ से हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दैट इज ट्रू। और जो आप जो फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, these are also called as yoni, right? करेक्ट। There are x number of yonis, right? मैंने अभी थोड़े दिनों मैंने एक बार एक जगह पढ़ा था कि कितने योनीज हैं एंड ऑल दैट स्टफ। वो सब भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगर हम सारे योनियों को देखेंगे हमको समझ में आएगा कि द ह्यूमन फॉर्म इज द मोस्ट प्रेशियस फॉर्म। तो अच्छा, अभी और एक चीज यहाँ में इस जो पॉइंट को थोड़ा मैं यहाँ होल्ड करूंगा। पहले जो जो एनर्जी, जो ब्लैक होल एनर्जी है ना, जिसको हम परमात्मा कहते हैं या सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं यार, तो वो जो लाइफ फोर्स है ना, उसको भी खुद को नहीं पता है वो लाइफ फोर्स है। हम लोग, हाँ। हम जब भी जैसे हम बोलते हैं ना कि परमात्मा परमात्मा, तो हमको इमीडिएटली हमारे ध्यान में कोई आ जाता है फॉर्म, कोई एक फॉर्म कि आता है। ब्रह्मा होगा, शिवा होगा, कृष्ण होगा या राम होगा। या लेकिन वो तो फॉर्म है उस एनर्जी का। करेक्ट। एनर्जी राम, जिससे राम है, वो एनर्जी उसके पीछे है। ट्रू। कृष्ण भगवान जिससे कृष्ण है, जो रूप है कृष्ण का, वो जो परमात्मा की एनर्जी है, वो वो उसके उसके पीछे पीछे है। है। तो या परमात्मा की एनर्जी पहले है, फिर राम का रूप है, फिर कृष्ण का रूप है। करेक्ट। राइट। तो वो एनर्जी हम जैसे ही, अभी देखो एक वर्ड है परमात्मा, तो आप उसको थोड़ा ब्रेक करो, परम परम आत्मा। आत्मा, या तो आत्मा ही बनती है परमात्मा। करेक्ट। परमात्मा, आत्मा ही बनेगी परमात्मा। वह परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा कोई फॉर्म नहीं है, या इट्स जस्ट अ लाइफ फोर्स, करेक्ट। लाइफ फोर्स। और वो लाइफ फोर्स को खुद को भी नहीं पता है कि उसका जो बाहर जो फैलता है, वो फैलने से पूरा, ये पूरा एग्जिस्टेंस हुआ है। तो वो अपने आप में वेरी लाइक, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फोर्स है। लेकिन वो जानने के लिए वहां से एक रेज निकली, करेक्ट। वो रेज ट्रैवल होते 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 हम लोग हो गए ह्यूमन फॉर्म में आ गए, हम्म। बराबर।
अभी ह्यूमन फॉर्म में हमको हमको वो स- जानने की इच्छा हुई, सीड्स ऑफ जो कि हम कौन है। करेक्ट, जैसे मैंने मछली का एग्जांपल दिया, मछली जब तक पानी में थी तब तक उसको पता ही नहीं था कि जो पानी उसकी पूरी उस एनर्जी है। तो हमको भी अभी पता नहीं है कि हमारी एनर्जी का छोर कहाँ है, या राइट? ये जो हमारी जर्नी है, तो उस जर्नी को हम और एक एग्जांपल से मैं समझाऊं। जैसे हम ये इसको देखते हैं, क्या बोलते हैं, सन को हम लोग देख सकते हैं ना। देख सकते हैं। तो सन की जो रेज, कितनी रेज है, मिलियंस ऑफ रेज, राइट? करेक्ट, सो ये मिलियंस ऑफ रेज को समझो अनंत अनंत आत्मा है। या मिलियंस ऑफ रेज इज लाइक अनंत आत्मा। अभी आत्मा है, आत्मा तो रे सन से तो रेज बाहर बाहर निकली, छूट गई, करेक्ट, लेकिन वो रेज कहाँ से होते आ गई, या ह्यूमन फॉर्म में आ गए हम। करेक्ट, तो ये हम लोग इस तरह से भी हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज है कि एक बार हम ह्यूमन फॉर्म में आ गए, फिर पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ओ And you cannot go back in animal yoni or pashu yoni or any other, because you already passed that. ह्यूमन फॉर्म में आप मिलियंस ऑफ टाइम जियोगे, मरोगे, बर्थ लाइफ सर्कल जो, जब तक आप ह्यूमन फॉर्म के बाहर नहीं जाओगे और ऊपर नहीं जाओगे। तो जो ये ह्यूमन फॉर्म है, उससे, क्योंकि यहाँ हमको जो प्रकृति ने जो सीड्स दिया है, बीज दिया है कि आप कौन हो जानने की अवेयरनेस का बीज हमारे अंदर है। करेक्ट, तो वो अवेयरनेस का बीज वहीं से हमको मिलेगा, ह्यूमन फॉर्म में। एनिमल या पशु के पास वो बीज है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। करेक्ट, ह्यूमन फॉर्म में वो बीज आके एक्टिव हो जाता है कि हमको बाय डिफॉल्ट जानने की इच्छा होती है, हम्म, हु एम आई, कौन हूं मैं, कहां से हूं मैं, आगे मैं जाने के लिए हाउ डू आई डू दैट, हम्म, राइट? अपने को जानने के लिए अवेयरनेस क्या है, विटनेसिंग क्या है, ये फिजिकल बॉडी क्या है। तो ये सब ह्यूमन फॉर्म में आके ही उठते हैं ना प्रश्न, क्योंकि हम ह्यूमन फॉर्म में आते ही हमारे पास मन बनता है, करेक्ट, अहंकार आता है। आप किसी कुत्ते को देखो या किसी पशु को देखो, उसके पास अहंकार नहीं होता ट्रू। उनका तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है खाली। है। उनके पास उनके पास खाली उनके पास एक भाव शरीर होता है। हम्म, वो भाव शरीर में उसको पता चलता है कि मुझे मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। भाव शरीर में वो उसका इमोशंस भी होता है, करेक्ट, भय भी लगता है उसको, या राइट? उसको वो प्रोटेक्शन भी होता है उससे, उसका। या लेकिन हम लोग थोड़े ऊपर आ गए, या तो ह्यूमन फॉर्म में आए, तो हमारी जो इंटेलेक्ट है वो वहां इंटेलेक्ट एक्टिवेट हो गई। तो हम उसी उसी इंटेलेक्ट से हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कहाँ है, क्या है, ये जो पूरा एक्सप्लोरेशन हो रहा है। तो ये कि एक बार हम ह्यूमन फॉर्म में आ गए, फिर पीछे जाने का कोई मार्ग नहीं, रास्ता नहीं है। लाइक एक ऐसे एग्जांपल समझो कि आप स्कूल में 6th ग्रेड में हो। 6th ग्रेड में आपकी एग्जाम हुई, एग्जाम में आप एग्जाम में नहीं, आप क्लियर की। सो नेक्स्ट ईयर जब भी आप आओगे तो वहीं होंगे ना, 6th ग्रेड वहीं से करोगे ना शुरू। फिफ्थ में तो जाएंगे नहीं। बराबर है। एक बार जो गए हो गया, वो हो गया। हो गया। वैसे ही यह एग्जिस्टेंस का ये अल्टीमेट रूल है। एक बार आप ह्यूमन फॉर्म में आ गए, फिर पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं। ह्यूमन फॉर्म में यू कैन टेक एज मेनी एज लाइफ,
जब तक आप ह्यूमन फॉर्म से ऊपर नहीं जाते, ऊपर नहीं जाते। हायर प्लेन में नहीं जाओगे। करेक्ट। तो अब हम लोग कभी बोलते हैं ना कि आदमी साला उसको तो अक्ल ही नहीं है, कैसा कैसी बातें करता, अक्ल नहीं है। वो करेक्ट। ह्यूमन फॉर्म में ही इज बिहेविंग लाइक करेक्ट। डोंकी, लाइक एनिमल, करेक्ट। लेकिन रहेगा तो वो ह्यूमन फॉर्म में ही उसी है। में वो, राइट। सो अभी मेरा मेरा एक थिंकिंग या मैं ऐसे सोचता हूँ कि यहाँ तक हम आए ह्यूमन फॉर्म में, हमारा अपना कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें? करेक्ट। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। एग्जिस्टेंस ही हमको लेके आई ना, जहाँ क्या? से हम छूटे थे, होते हम लोग आ गए यहाँ। तो हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है अभी तक। या लेकिन as soon as we come in the human form, हमारा रोल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मतलब वो हमको आइए स्पाइडरमैन वाली फ्रीडम चीज हो मिली गई है। ना सर, कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, तो यहाँ से हमको हमको पता चला, हमको आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको यहाँ रियलाइज होता है कि इस फॉर्म में आके हम लोग कुछ कर सकते हैं, राइट। अभी जब भी इस फॉर्म में हम आएंगे, राइट, तो उसके लिए हमको कुछ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हाउ वी कैन आगे कैसे बढ़े हम लोग। हम्म। तो वो बढ़ने के लिए हमको वन शुड क्रिएट अवर ओन पाथ। हमको हमारा रास्ता खोजना पड़ेगा, करेक्ट। हमको उस रास्ते से जाना पड़ेगा। पहले हमको हमारा हमारा व्यक्तित्व कैसा है उसको हमको जानना पड़ेगा या कि हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से हमको कौन सा रास्ता हमको जाएंगे। हम प्रेम से मार्ग से जाएंगे, भक्ति का मार्ग हमारा है, ज्ञान का मार्ग हमारा है, ध्यान का मार्ग हमारा है। हमारा रास्ता क्या है? क्या है? करेक्ट। तो वो रास्ता खोजने के लिए हमको थोड़ा उसमें उतरना पड़ेगा। हम्म। तो हमको पता नहीं है ना कि हमको कौन सा रास्ता हमारे लिए फिट है। तो वो करेक्ट। रास्ता खोजने के लिए हमको कुछ पल प्रेम के मार्ग पे हमको थोड़ा करना पड़ेगा एक्सप्लोरेशन। ध्यान के मार्ग पे थोड़ा करना पड़ेगा एक्सप्लोरेशन। ज्ञान के मार्ग पे थोड़ा जानना पड़ेगा। तो ये जो जानने की जो मेथड्स है ना, उसके उसको हम बोलते हैं साधना साधना साधना। या साधना। और क्या है? वही वही तो है कि हमको जानना है कि कौन सा रास्ता हम हमारे लिए अच्छा है। तो करेक्ट। वो रास्ता जानने के लिए मैंने 5 बनाए पॉइंट्स बनाए, ओके। जो मैंने जो मैंने मेरे गुरु से मैंने सीखे, अंडरस्टैंड किए हैं। वो 5 पॉइंट ऐसे हैं कि इस यहाँ पे मैं आपको एक एनालॉजी दूंगा। ह्यूमन अपना है फॉर्म, राइट। ह्यूमन फॉर्म इज लाइक अ मंदिर है। ये अपना शरीर, फिजिकल बॉडी अपना मंदिर है, जिसको आप ऐसे समझो। फिर अपने पास माइंड है, शरीर है, मन है, इमोशन है, ब्रेथ है, ब्रेथ है अपने पास, करेक्ट। राइट। राइट। सो ये जो 4 है, एक ह्यूमन फॉर्म है, फर्स्ट बॉडी है, माइंड है, इमोशन है, ब्रेथ है, करेक्ट। बराबर है। बॉडी इज लाइक योर मंदिर, टेम्पल, टेम्पल। करेक्ट। राइट। सो शरीर है हमारे पास, सो शरीर ये मंदिर है, तो उसको वर्कआउट करने के लिए हमको कुछ उसको करना पड़ेगा। खाना देना पड़ेगा ना, शरीर करेक्ट। को वर्कआउट करने के लिए। सो वी आर ऑफरिंग प्रसाद टू अवर मंदिर, एक्चुअली बात सही टेम्पल। है। एक्चुअली आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वही हम, सो एज द सेइंग गोes, व्हाट यू ईट यू बिकम। राइट।
तो अभी जैसे हम बाहर मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में हम जाते हैं भगवान को प्रसाद देने को, तो हम कुछ ऐसी वैसी तो नहीं लेके जाएंगे चीजें, करेक्ट, अच्छी लेके जाएंगे, एकदम अच्छी करेक्ट, से अच्छी लेके जाएंगे। एग्जैक्टली यू हैव टू अप्लाई विथ योर बॉडी। ट्रू, आपके वेरी शरीर ट्रू, के अंदर आप अगर कुछ भी ठूसोगे, अंट संट खाओगे, तो आपका ये मंदिर का स्ट्रक्चर पूरा हिलने लगेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। राइट, सो उसको आपको, जो आप मंदिर में जो प्रसाद ऑफर करते हो, तो वैसा ही समझो ये बॉडी आप तुम्हारा मंदिर है, तो उसके अंदर कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेके जाओ। और उसी एक तरीके से रखो साफ सुथरी। हाँ, हाँ। दूसरा है माइंड। माइंड। माइंड इज लाइक इंटेलिजेंस है, हम्म। थॉट है, इमेजिनेशन है। सो हमारा जो ये शरीर है, उसको साफ सुथरा रखने के लिए हमको माइंड माइंड का यूज करना पड़ेगा, करेक्ट, इंटेलिजेंट यूज करना पड़ेगा। करेक्ट। राइट, सो ये मन हमको हमको एक स्किल देता है, हमको एक आर्ट देता है, एफर्ट, जो अपने जो शरीर मंदिर को, हाउ हाउ वी कैन मैनेज अवर फिजिकल फॉर्म, बॉडी जो हमारा मंदिर है। मन हम करेक्ट। मन की इंटेलिजेंस यूज करेंगे, क्योंकि फिजिकल मंदिर को हमको हाउ वी मेंटेन दैट, यस। वो मन का उपयोग हो गया। अभी इमोशन है, राइट, सो इमोशन मीन्स क्या, हम लोग एक ऊपर करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, ग्रैटिट्यूड, भाव, करेक्ट। भाव है ना हमारा या एग्जिस्टेंस की ओर, एक इमोशन है, एक भाव है। तो वही भाव हमको जो हमारा फिजिकल मंदिर है, हम उसकी हम तरफ भी उसको देना ऑफर है, करेंगे। उसकी तरफ भी देना है। इट्स क्योंकि हम, क्योंकि ये साधना यहीं से शुरू होगी ना, फिजिकल से। करेक्ट। तो ये फिजिकल मंदिर को अच्छा भाव देना जरूरी है। आप कुछ भी भाव, कुछ भी मन के द्वारा, इंटेलिजेंस जो मैंने बताई है, अगर मन के द्वारा आप गलत भाव लेके जाओगे, तो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा हिलने लगेगा। पॉइंट है सर, इसमें पॉइंट है, बिकॉज अगर हम देखें इस चीज को, पॉजिटिवनेस नहीं आएगी। नहीं आएगी, कहां से आएगी पॉजिटिवनेस? और उसकी वजह से शरीर ऑटोमेटिकली खराब सिचुएशन में जाता रहेगा। तो ये एक दूसरे से, एक लिंक्ड है, दूसरे के इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड। बॉडी माइंड इमोशन। एग्जैक्टली। तो वो अगर 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 समझो हमारी बॉडी ठीक होगी, माइंड उसको अच्छा थॉट करेगा प्रोवाइड, तो हमारा इमोशन भी अच्छा होगा। बिल्कुल। इमोशन अच्छा होगा तो हमको एग्जिस्टेंस के हिसाब, एग्जिस्टेंस पे हम लोग, हमको वो आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा। ग्रेटिट्यूड आएगा, बिल्कुल। अभी हम राइट, एक और एपिसोड में, एस्ट्रोलॉजी वाले एपिसोड में जब डिस्कस कर रहे थे कि a person who can digest anything and can sleep at any time is the most happiest person in this entire world. और आप जो बोल रहे हो एग्जैक्टली वही चीज है कि अगर हमने बॉडी को ध्यान रखा, माइंड को ध्यान रखा, इमोशन बाहर आए अच्छे वाले, वी आर द हैप्पीएस्ट। आप तो खुद खुश हो गए, आप औरों को भी आप औरों को भी आपसे खुश करोगे। आपसे मिलेगी खुशी। राइट, अभी फोर्थ एलिमेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेथ। हमारे पास ब्रेथ भी तो है। सो ब्रेथ, लाइक ब्रेथ को आप ऐसा समझो, झाड़ू होता है ना, घर में कचरा निकालने का झाड़ू, या तो अवर ब्रेथ इज लाइक दैट। सो रोज हम मंदिर में जो गार्बेज, मंदिर में हम लोग जो कभी गार्बेज लेके जाते हैं, खराब खाना खा लेते हैं, उससे खराब खाने से थॉट में इफेक्ट्स आती है, करेक्ट, खराब थॉट्स या अच्छे थॉट्स नहीं आते, उससे हमारा इमोशन भी हिलने हिलने लगता है। लगता है। तो ये ब्रेथ क्या करेगा, हम लोग रोज सुबह घर में से कचरा निकालते हैं, राइट, वो तो भी निकाल। ये ब्रेथ करेगा काम। ब्रेथ इज इक्वल टू प्राणायाम। प्राणायाम, गॉट इट। ब्रेथ से क्या होता है, हम ब्रेथ को साफ करते हैं ना,
मंदिर में से जो रोज कचरा, सो अगर रोज हम लोग प्राणायाम रोज करेंगे तो रोज का रोज जो कचरा रोज हम लोग लेके जाते हैं वो रोज होता निकलता है ना रहेगा। साफ। आप ऐसे ही समझो ना, आपके घर हाँ, के मेक अंदर रोज आप सेंस, कचरा साफ नहीं करते हो रोज। मेक सो सेंस। ब्रेथ, सो तुम्हारा ब्रेथ इज लाइक क्लीनिंग, स्वीपिंग फ्रॉम इनसाइड। बॉडी को क्लीन करेगा, माइंड को क्लीन करेगा, इमोशन को क्लीन करेगा। प्राणायाम गहरा संबंध है बहुत। अगर आप उसको करेक्ट। समझोगे, बॉडी, माइंड, इमोशन, ब्रेथ एंड ये ब्रेथ, 4 टूल है, ये टूल है साधना में जाने के लिए। अगर साधना में आपको सच में आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना है, तो ये चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर बेस आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप हाउ यू कैन ग्रो, ट्रू, वेरी ट्रू, राइट? वेरी ट्रू। तो प्राणायाम मतलब क्या? प्राणायाम का मतलब क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्राणायाम के नाम से सबसे पहले सबके दिमाग में आता है एक नाक बंद है एंड दैट इज प्राणायाम, बट एक्चुअली उससे बहुत बड़ी चीज। प्राणायाम इज लाइक शेकिंग एंड रबिंग द एनर्जी। हम्म। शेकिंग एंड रबिंग द एनर्जी, ये जो दो नथुन ऐसा निकलती है, जो इंगला नाड़ी बोलते हो, आप पिंगला पिंगला नाड़ी, नाड़ी बोलते हो, या वो प्राणायाम इंगला और पीड़ा को रब करता है। रब कर वो देता रब होती है जो ब्रेथ अंदर बाहर लेने से, उससे आपकी ये अपनी सुषुम्ना नाड़ी है ना, एक्टिवेट होती है, बीच की नाड़ी, है, बीच की नाड़ी जो है। कि वहां से ही एनर्जी का फ्लो अपवर्ड होगा ना। करेक्ट, वही मेन एंटीना है। तो करेक्ट। प्राणायाम, तो अगर आपकी फिजिकल बॉडी ठीक नहीं होगी, तो आप ब्रेथिंग एक्सरसाइज बराबर नहीं कर पाओगे। करेक्ट, सही जवाब। तो ये लिंक है बॉडी, माइंड, इमोशन और ब्रेथ का। ये चारों चारों चीजें आपको प्राणायाम करते टाइम पे आएगी। अगर इसमें से एक भी चीज ठीक ठाक नहीं हुई तो प्राणायाम करोगे, लेकिन वो आपको आंसर नहीं मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका। करेक्ट। अच्छा, ये जो प्राणायाम हम रोज करोगे, प्राणायाम करता क्या है? हम्म। प्राणायाम जब भी आप रोज रेगुलर करोगे तो करता क्या है? प्राणायाम से आपके ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है ना, वो वो बढ़ता है। प्राणायाम से बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। और साधना में आगे बढ़ने के लिए, ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। That means your body needs to be very much oxidated, full of oxygen for you to evolve. क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जितना कम होगा ना, उसकी उसका सीधा कनेक्शन अनकॉन्शियसनेस से है, अवेयरनेस से है। सीधा कनेक्शन, डायरेक्ट। जितना शरीर में ऑक्सीजन लेवल हाई होगा, एनर्जी अपवर्ड रहेगी, उतनी उतनी आपकी अवेयरनेस ग्रो होगी, बढ़ती रहेगी। और हमने लास्ट 3 एपिसोड में अवेयरनेस का कितना इंपॉर्टेंट है, वो मैंने Correct. ऑलरेडी बताया Correct. कि विदाउट अवेयरनेस कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। होश चाहिए हर एक एक्टिविटी में, हर एक एक्ट में। यू हैव टू बी अवेयर। तो ये बॉडी, माइंड, इमोशन का चक्कर जो अगर अनबैलेंस हो गया, और अगर आपका प्राणायाम के थ्रू या किसी और रिसोर्स के थ्रू आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपकी अनकॉन्शियसनेस बहुत है। तो हम लोग अनकॉन्शियसनेस में ही सब एक्ट करते हैं ना, खाना पीना, सोना, ऑफिस जाना, ये करना, वो करना। या अभी देखो, अभी आप ऑब्जर्व करना ये, कि कहाँ कहाँ मैं जो दिन में 1000 चीजें एक्ट करता हूँ, वो सब अनकॉन्शियसली कर रहा हूँ। होश कहाँ है पीछे? रूटीन है। रूटीन, होश ही नहीं है पीछे। होती नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। या तो मसल, मैकेनिज्म ऑटोमेटिक हो रहा है। या तो मसल मेमोरी है, या तो हैबिट मेमोरी है, या कुछ भी है।
बट इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली. आई डोंट नीड टू पुट एन एफर्ट फॉर दैट. और आप सही बोल रहे हो, मुझे अगर कोई भी चीज अलग से करनी पड़े, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है. तो मतलब जो भी चीज के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, वो एक हैबिट है एंड इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली. इसीलिए मैंने लास्ट 3 एपिसोड में छोटी-छोटी जो वो मेथड्स दी है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग योर रूटीन लाइफ. रूटीन लाइफ. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये छोटी-छोटी चीजें ड्यूरिंग योर 24 आवर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो आप सी अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है. आपको उसको हर हर एंगल से करना पड़ेगा. उसके उसके ऊपर काम प्राणायाम से करो, मेथड से करो, मंत्र से करो, तंत्र से करो, ध्यान से करो, चारों ओर से लेना पड़ेगा. क्योंकि हम लोग जहां से आते हैं हमारा मैंने आपको बोला कि हम लोग हमारी अनकॉन्शियस रेज हम जहां से आते हैं वो पूरी हम अनकॉन्शियस थे. वहां हमको पता नहीं था कि हम कहाँ से आए हैं. तो करेक्ट. हमारे पास अनकॉन्शियस का खजाना पड़ा है. हमारी आदत है अनकॉन्शियस रहना. करेक्ट. तो वो अनकॉन्शियस को ब्रेक करने के लिए हमको चारों बाजू से अटैक करना पड़ेगा अवेयरनेस का, अवेयर होने के लिए. या. करेक्ट. यू अगर आप यहीं यहीं अनकॉन्शियस देखो लोग वो ड्रिंक्स करते हैं, पीते शराब पीते हैं. क्यों क्यों पीते हैं शराब पता है? क्योंकि शराब पीने के बाद वो वापस अनकॉन्शियस में चले जाते हैं. वो जहां से आए थे, जहां से उनको वहां चले जाते. हजारों मिलियंस मिलियंस ईयर वो करके ट्रांसफॉर्म होके आए. क्योंकि हमारा मन का नेचर है ना कि वापस अनकॉन्शियस में चले जाओ. तो एक बार आदमी शराब पी के अनकॉन्शियस हो जाता है फिर उसको तो पता ही नहीं है. वो अपनी मस्ती में होता है और करेक्ट. अनकॉन्शियस में वो जो भी बोलता है इतना सब वो होता है, ट्रूथफुल होता है. क्योंकि वो अंदर से वो है. वो बाहर जो शराब पीने से पहले जो वो है और शराब पीने के बाद जो बनता है उसमें बहुत फर्क है. करेक्ट. शराब पीने से पहले वो एक्ट करेगा कि मैं अच्छा हूँ, ये हूँ, वो. करेक्ट. 2-4 गैप पैक गए उसके तो उसका अनकॉन्शियसनेस खुल गया. सो ही विल एक्चुअली शो द हु आई एम फ्रॉम इनसाइड. He will reveal himself. उसके उसके फिर इमोशंस बाहर आने लगते हैं. उसका एग्जैक्टली. सब कुछ बाहर अपने आप ही. लेकिन सर मजेदार चीज ये है कि एक बार मैंने पी ली और उसके बाद मेरे इमोशन बाहर आ गए और उसके बाद मेरी उतर गई, फिर मैं वापस चला जाता हूँ अपने एक्ट. वही वही तो होते रहता है. जब भी आप गुस्सा होते हो तो क्या हो जाते हो आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हो. वेरी ट्रू. जो क्रोध की मोमेंट में आपको कुछ होश ही नहीं रहता है. वेरी ट्रू. आपको क्रोध आया, आपने किसी को गाली बक दी, फिर 2-4 घंटे ओह शिट यार उसको ऐसा नहीं बोलना नहीं चाहिए. बोलना चाहिए था. बाद में होश आता है, बाद में पता. लेकिन उस मोमेंट वो जो मोमेंट बेहोश. है मतलब प्रेजेंट मतलब मोमेंट वो वर्ड हो गया बेहोश. बेहोश हो गया. बेहोश यार. तो वो जो हमारा हमारा बेहोशपन है ना, वो हमारे साथ-साथ ही क्योंकि उसका हमें अनुभव है ना, पिछली करेक्ट. मिलियंस ऑफ ईयर से हम जो लेके आए वो क्या लेके आए हैं? बेहोशी. वही तो लेके आए. तो बेहोशी को ब्रेक करने के लिए हमको जो एफर्ट करना है ह्यूमन फॉर्म में आके, तो हमको वो एफर्ट करने की एबिलिटी मिलती है ह्यूमन फॉर्म में. इसीलिए ह्यूमन फॉर्म इतना इम्पोर्टेंट है. And that is why we should not waste any moment of our life. एग्जैक्टली दैट. सो वो सब करने के लिए अपना शरीर, अपना मन, अपना इमोशन वो सब ठीक ठाक रखना पड़े. अभी आप समझ रहे हो उसकी वैल्यू. Yes, the और value मैंने of that. अपना इस शरीर को क्यों मैंने मंदिर कहा, And माइंड को क्यों मैंने. what happens, sir, on a daily basis, we take everything for granted. हम सोचते ही नहीं है. And we feel entitled कि हमको तो ये मिलना चाहिए और सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. अच्छा, दूसरी Point है. ये तो एक मेथड हो गई. प्राणायाम से आप ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हो. Correct. आपको देखो आपको जब भी आप पानी के बाजू में जाते हो, पानी या वाटर वाटर बॉडीज हम्म. होती है, हम्म. वहां उसके बाजू में रहते हो. जैसे गंगा का पानी बह रहा है, आप उसके बाजू में बैंक्स पे बैठे हो, वहां ऑक्सीजन लेवल अपने आप हाई होता है.
और पानी जो ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजन का पानी तो लेवल। ऑक्सीजन छोड़ता ही रहता है हमेशा। तो आप किसी वाटर बॉडी के बाजू में बैठ जाओ 10-15 मिनट, 20 मिनट शांति से शांति और मिलती वहाँ वहाँ आप ध्यान करो। आपका ध्यान अच्छा ऐसे ही फटाक आराम से लग जाए। है। एक्चुअली उसके में लिए आपको शांति भी बहुत एफर्ट मिलती है। एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल इतना हाई है। हुँ, पानी के बाजू में जो ऑक्सीजन छोड़ता है वो पानी, तो ऑक्सीजन को हम जो ब्रीथ लेते हो अंदर, तो ऑक्सीजन से मन अपने आप शांत हो जाता है। माउंटेन्स पे आप जाते हो थोड़ी हाइट हुँ, पे, तो वहाँ नीचे पॉल्यूशन नहीं होता, तो करेक्ट, हाइट्स पे जब भी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा अच्छा होता है, तो माउंटेन्स पे आपको जाते हो तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लग रहा है, करेक्ट। शांत लगता है ना। सब वो ऑक्सीजन का माउंटेन खेल है। वो माउंटेन के कारण नहीं वो वहाँ ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है। यार ये तो साइंटिफिक एकदम टोटल साइंटिफिक है व्हिच मेक सेंस कि ऑक्सीजन आया और हम खुश हो गए। राइट? क्योंकि इसी तो बोलता है प्राण है, ऑक्सीजन इज़ प्राण। देखो हाँ, H2O क्या बदला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो बनाता है पानी वो क्या है थर्ड एलिमेंट, वो लाइफ फोर्स है। लाइफ फोर्स, करेक्ट, लाइफ फोर्स एनर्जी के बिना वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही बना रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जगह पड़ा रहेगा। वो करेक्ट। दो वो एनर्जी है, वो दोनों को मिलाती है, फिर पानी बनाती है। फिर पानी बनता है ना। बात सही है। हम पेड़-पौधे वाली जगह पे जाते हैं, खुली जगह पे जाते हैं जहाँ पे वायु अच्छी तरह फैल रही है, ऑक्सीजन होता है, हमें अच्छा लगता है। वी टेक अ ब्रेक एंड वी कम बैक एंड अगेन वी स्टार्ट आवर एंटायर थिंग्स व्हिच वी डू ऑन अ डेली बेसिस। खत्म हो ये जाता है देखो मतलब। हाँ, ये देखो जो पास्ट में जो ये जो भी ऋषि मुनिज है या जो भी बुद्ध है, जो भी साधना करता है, वो हमेशा ना ये अपना पीपल का झाड़ हमेशा पसंद करते हैं नीचे बैठने का। करेक्ट, पीपल ट्री रिलीज़ 100% ऑक्सीजन। उसका काम ही है ऑक्सीजन रिलीज़ करना रिलीज़ करना। और जो आजू-बाजू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खींच लेता है। तो पूरा का पूरा एकदम क्लीन वो एनवायरनमेंट में झाड़ बैठोगे। वो झाड़ के नीचे बैठने की साधना करने की, ध्यान करने का इसीलिए करते हैं वो ध्यान वहाँ, कि पीपल का ट्री सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन करता है रिलीज़। ध्यान करने का मतलब ही ये यही मतलब है ही ना। नहीं है। तो ऑक्सीजन लेवल बोलने का मतलब है ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी में जितना ऊपर होगा, अभी वो आप फिर कर लेना कैलकुलेट कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है, उतनी ही मेरी अवेयरनेस होगी। मेरा जितना राइट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल जितना डाउन होगा, मेरी अवेयरनेस होगी कम, उतनी ही कम काफ़ी होगी, कम होगी। पॉइंट तो है मेरे इसमें, व्हिच इज़ टोटली डायरेक्टली कोरिलेटेड। राइट? अच्छा, दूसरी दूसरी एक बात है कि जब भी आप ध्यान करने बैठते हो या कुछ भी मंत्र या जो भी करने बैठते हो, आप आपको क्यों बोला जाता है कि आपकी स्पाइन आप इरेक्ट रखो? रीज़न बिहाइंड इट बहुत बहुत ही बढ़िया उसके पीछे रीज़न है। साइन वो जैसे ही तुम्हारी स्पाइन 90 डिग्रीज़ पे इरेक्ट हो जाती है, राइट? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ विल रिड्यूस। ओके, स्पाइन क्यों 90 डिग्री पे खड़ी साधना में क्यों लोग बोलते हैं कि पद्मासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, अगर नहीं बैठ सकते हो तो सुखासन में ही बैठो, लेकिन आपकी स्पाइन सीधी रखो। करेक्ट। क्योंकि जब भी आप बैठते हो ऐसे पद्मासन में या सिद्धासन में, तो वो स्पाइन का इरेक्ट होना, वो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वहाँ, वो उसको इफेक्ट नहीं करता। वो एनर्जी को अपवर्ड होने में हेल्प करती है। वो एनर्जी खींच एनर्जी को नीचे नहीं खींचती है। नीचे नहीं खींचती, वो सीधे वो ऊपर। स्पाइन एनर्जी को अपलिफ्ट देती है। नॉट बैड। इसीलिए इसीलिए हर एक सभी लोगों ने कहा कि ध्यान करो तो क्यों एनर्जी स्पाइन आपको इरेक्ट करके बैठनी, ऐसे बैठो नहीं चलेगा, ये चलेगा। इरेक्ट। तो वो जो इरेक्ट होना है, जो जब भी आप शुरू-शुरू में ध्यान करने बैठोगे ना, तो इरेक्ट वो आपको
सीधा रखने के लिए एफर्ट करना एफर्ट पड़ेगा, डालना पड़ेगा, करेक्ट। राइट? थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने बोला 10-15 मिनट से शुरू करना ध्यान, हम्म। जब भी प्रैक्टिस होते 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 आपको हो जाएगा। एक बार वो एनर्जी अपवर्ड होने शुरू हो गई ना, फिर वो वो सीधा होना एनर्जी शुरू ही होता स्पाइन को इरेक्ट करके रखेगी। यू विल सिट एफर्टलेसली आवर्स, आवर्स, आवर्स एंड आवर्स। और ध्यान में गहरे जाने के लिए ये जरूरी है। है। ये जरूरी है, करेक्ट। यू अगर स्पाइन आपकी इरेक्ट रहेगी, उसको आप ऐसा समझो, एक मेरा शर्ट है, उसको मैंने हैंगर पे लटका दिया, तो शर्ट का जो वजन है वो तो हैंगर ने उठा लिया ना। करेक्ट। और शर्ट को वो कुछ करना हैंगर ही को नहीं है। और वो हैंगर को मैंने जो अपना रॉड है उसके ऊपर डाल दिया। करेक्ट। वैसा ही है कि एनर्जी जब भी ऊपर होगी तो अपना हमारी स्पाइन है ना, वो अपना शरीर का जो वेट अपने है ना वो आप है। पूरा हैंग कर लेगी। स्पाइन में जो एनर्जी जाएगी ना, लिफ्टमेंट होगा ना उसका, वो एनर्जी उसको हैंग कर लेगी। अपने को कुछ एफर्ट ही करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एफर्टलेसली आप बैठोगे 1 घंटा 2 घंटा, जो जो आपको मर्जी। वहां वहीं से तो सब होता है खेल शुरू। वहां द से तो मोमेंट शुरुआत होगी। द मोमेंट द एनर्जी स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू। हमारी नाभि हमारा केंद्र है। मैंने करेक्ट। बोला था तो यूनिवर्स का जो ब्लैक होल, वो हम्म। ब्लैक होल पूरे यूनिवर्स को सब इकट्ठा करके रखा है उसने। करेक्ट। तो हमारा ये जो फिजिकल फॉर्म है, बॉडी माइंड इमोशन ब्रेथ, उसका भी एक सेंटर है ना, करेक्ट। पॉइंट है। सेंटर पॉइंट क्या है? नाभि। भी। नाभि नाभि से हम जुड़े हैं। हम एग्जिस्टेंस से नाभि से जुड़े हैं, इट्स ट्रू। इनविजिबली। इनविजिबल। चाहे तुम मानो या न मानो। देखो, आप माँ के गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो उसकी नाभि माँ के उससे जुड़ी हुई जुड़ी होती हुई है ना। होती है, वहीं से सब कुछ आता है। खाना पीना, वो सांस सब कुछ। पेट में थोड़ी वो अपने आप सांस लेता है। माँ जो सांस लेती है वही वो लेता है ना सांस। माँ जो खाना खाता है तो वो नाभि नाभि सब करती है सप्लाई उसको। इतनी इंपॉर्टेंट जगह है। फिर जब ये वो बाहर आता है, हम उसको थपथपाते हैं, सांस, पहली सांस लेता है, उसके बाद हम लोग नाभि को काटते हैं। क्योंकि अभी नाउ यू आर अभी वो रेडी। अपने आप से सांस लेने को आ गया उसको। आ गया। सो ये नाभि का बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि हमारी हमारी कुंडलिनी जो एनर्जी सोई पड़ी है ना, वो नाभि से 2 उंगल नाभि से 2 उंगल ऊपर। ऊपर है। तो हमको खाली एक ही काम करना है। हमारी जो ब्रेथ एनर्जी है ना, जो प्राणायाम, जो जीवनी शक्ति है हमारी, वो नाभि से उठा के हमको 2 उंगल ऊपर तक लेके जाना है। और साधना 2 उंगल की है। फिर काम अपने आप चालू। फिर एक्टिवेट हो जाएगी सब चीजें, तो एनर्जी अपना खेल करेगी फिर। वो हम पीछे जब भी हम एज एपिसोड जाएंगे ना, तो हम लोग मैं एक एक करके सभी चीजें आपको बताऊंगा कि 7 शरीर है, 7 अपने एनर्जी के जंक्शन है, हाउ दे वर्क, करेक्ट। राइट? लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है कि एनर्जी को एक्टिवेट करें। और उसके विदाउट लिए ये सारी एक्टिवेशन चीजें ऑफ करनी पड़ेगी। एनर्जी, और एनर्जी एक्टिवेट कैसे होगी? बॉडी माइंड इमोशन ब्रेथ। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी सेट। चाहे वो उसको आप योगा बोलो या या कुछ भी बोलो। पतंजलि का भी वही सिस्टम है ना, वही यम लगता है। नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग जो बोलते हैं। अष्टांग योग, करेक्ट। तो वो लंबा रास्ता है, वो अष्टांग योग का। और एक रास्ता है अवेयरनेस का। अष्टांग योग का जो रास्ता है उसको हम बोलते हैं हठ योग। हठ योग, करेक्ट। हठ योग, वो भी कुंडलिनी का ही पाथ है पूरा। आंसर वो सेम थो है। वो थोड़ा खतरनाक पाथ है, उसको थोड़ा आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। और राजयोग वाला पाथ है, वो वहां से भी कुंडलिनी उठ के जाएगी, लेकिन वो अवेयरनेस वाला मार्ग, एकदम सिक्योर्ड मार्ग है।
कोई भी Hmm. झंझट नहीं है, खाली आपको अपने होश पे काम करना है, कॉन्शियसनेस पे काम। जितनी Consciousness. कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, ऊर्जा अपने आप उठेगी। Okay. आपको कुछ करने सी हठ योग में आपको कुछ करना पड़ेगा ना, Correct. अपने बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ योग, प्राणायाम करके आपको कुंडली उठानी पड़ेगी। आपके पास इतना टाइम है अभी? आज ह्यूमन जो जा रहे हैं, जितना बिज़ी ऑक्यूपाइड माइंड लेके एक आदमी चल रहा है, उसको एक आधा घंटा ध्यान में बैठने को टाइम नहीं है। वो कहाँ हठ योग करेगा? Correct. सही जवाब. सही जवाब. अगर आप कर सकते हो तो करो, हठ योग से जाओ। लेकिन जब भी मैं अभी बात बताऊँ, प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताता हूँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में राजयोग बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि वो सीधा अवेयरनेस पे काम करता है ना, Exactly. होश पे डायरेक्टली काम करता है। Correct. हठ योग में तो तुम प्राणायाम, योगा, तंत्र वो कर करके करोगे तब जाके कुछ बनेगी बात। यहाँ तो सीधी कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हो, सीधा डायरेक्ट। Direct. Point है. Total point है. This makes sense. समझा? तो अगर ये सब चीजें आप ध्यान में रखोगे, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि अपनी प्राण ऊर्जा की वैल्यू क्या है। That is true. हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है, दे हैव सो मच ऑफ वैल्यू। तो आज मैं यहाँ पे खत्म करूंगा चीजें मेरी बात करने की। नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग करेंगे ये प्राण ऊर्जा से यात्रा कैसे हम शुरू करें, प्राण ऊर्जा क्या है, उसको उठाने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। Perfect, sir. Perfect. So we'll meet again with the next things in line. And all the viewers and listeners, please do subscribe and like the channel and share it. And watch the previous episodes, listen to the previous episodes on the podcast too. And you will certainly get a lot of insights. Thank you very much. Bye bye. See you next time.